Section 4 में के examples है. Prove that a quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonals bisect each other. इसमें अपने को पहले पार्ट में प्रूव करना है कि यदि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, दैट मींस दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है. सेकंड पार्ट में यानी कॉन्वर्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एक गिवन रहेगा, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है और प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. सो सॉल्यूशन. अब जैसे एक पैरेललोग्राम है स्टार्टिंग में ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वर्टाइसेस है ABCD, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर है, बी का वेक्टर बी, सी का वेक्टर सी और वेक्टर डी. तो सबसे पहले लेना है पोजीशन वेक्टर्स. लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस A, B, C and D respectively of parallelogram ABCD. अब गिवन है कि ये ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB और DC दोनों पैरेलल है. Where AB is parallel to DC, AB equal to DC, AB and DC parallel, AB equal to DC. Therefore vector AB is equal to vector DC. Vector AB और vector DC दोनों वेक्टर हो गए इक्वल. Vector AB equal to vector DC. Vector AB it can be written as vector B minus vector A. Vector DC को लिखेंगे vector C minus vector D. Position vectors में position vector of terminal point minus position vector of initial point. Vector AB means vector B minus vector A. Vector DC means vector C minus vector D. While minus vector D is the transfer, B transfer. So vector B plus vector D equal to vector C plus vector A. Now divide both sides by 2. Vector B plus vector D upon 2 equal to vector C plus vector A upon 2. ये होगा midpoint formula. Vector B plus vector D upon 2 means position vector of midpoint of diagonal BD. Vector C plus vector A upon 2. This is position vector of midpoint of diagonal AC. Position vector of midpoint of diagonal BD equal to position vector of midpoint of diagonal AC, and therefore the diagonals AC and BD bisect each other. ABCD parallelogram और प्रूव किए अपने diagonal bisect each other. अब सेकंड पार्ट में ये गिवन रहेगा कॉन्वर्स में और प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. Let the diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD bisect each other. डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है. मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD इज सेम. इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. मिड पॉइंट फॉर्मूला है वेक्टर A प्लस वेक्टर C अपॉन 2 इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर D अपॉन 2. 2 कैंसल. Vector A plus vector C equal to vector B plus vector D. Vector D sign transfer, A vector A transfer, तो vector C minus vector D equal to vector B minus vector A. Vector C minus vector D means vector DC. Vector B minus vector A means vector AB. Vector DC equal to vector AB. दो वेक्टर इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों को लीनियर पैरेलल. DC is parallel to AB. DC equal to AB. ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है. अपोजिट साइड्स पैरेलल, लेंथ में इक्वल, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सेकंड एग्जांपल. सेकंड में प्रूव करना है कि मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स. ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें वर्टाइसेस है ABCD. नॉन पैरेलल साइड्स है AD और BC. नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स, AD का मिड पॉइंट है M और BC का मिड पॉइंट भी अपन है N. सो दिस MN is called as trapezium. MN is called as median of trapezium. Let vector A, vector B, vector C and vector D. ये हो गया पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस ABCD of trapezium ABCD. Vector M और vector N, these are the position vectors of midpoints of non-parallel sides AB, AD and BC respectively. यहाँ पे अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. वेक्टर M इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर D अपॉन 2 एंड वेक्टर N इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर
c upon 2, vector m equal to vector a plus vector d upon 2, vector n equal to vector b plus vector c upon 2. प्रूव करना है अपने को mn is parallel to ab and dc. mn is equal to half of ab plus dc. यहाँ पे mn equal to half of ab plus dc के लिए वेक्टर mn कैलकुलेट करेंगे. वेक्टर mn is equal to वेक्टर n माइनस वेक्टर m. वेक्टर n की वैल्यू प्रीवियस स्टेप में लिए थे. वेक्टर n की वैल्यू वेक्टर b प्लस वेक्टर c अपॉन 2 और वेक्टर m की वैल्यू वेक्टर a प्लस वेक्टर d अपॉन 2. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. एलसीएम इज 2. न्यूमरेटर वेक्टर b प्लस वेक्टर c माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर d. देन राइट वेक्टर b माइनस वेक्टर a देन प्लस वेक्टर c माइनस वेक्टर d. वेक्टर b माइनस वेक्टर a मींस वेक्टर ab. वेक्टर c माइनस वेक्टर d मींस वेक्टर dc. It is equal to half of vector ab plus vector dc. This is equation number 1. Now AB is parallel to DC. Parallelogram में AB और DC parallel है, and therefore vector AB and vector DC are collinear. Collinear means scalar multiple. Vector AB equal to k times vector DC, where k is a scalar. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वेक्टर AB की k वेक्टर DC इन इक्वेशन 1 में. वेक्टर mn इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ पे k वेक्टर DC प्लस वेक्टर DC. वेक्टर DC कॉमन तो ब्रैकेट में k प्लस 1 एंड हाफ ऑफ k प्लस 1 इंटू वेक्टर DC. वेक्टर mn इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर DC. स्केलर मल्टीपल मींस कोलिनियर. वेक्टर mn एंड वेक्टर DC आर कोलिनियर एंड therefore mn इज पैरेलल टू DC. एक पार्ट हो गया. ट्रेपेजियम में mn पैरेलल टू DC प्रूव हो गया. AB और DC दोनों पैरेलल है. AB इज पैरेलल टू DC and therefore mn is parallel to AB as well as DC. You got first part. Second part में प्रूव करना है mn equal to half of AB plus DC. वेक्टर AB और वेक्टर DC कोलिनियर है and therefore mod of वेक्टर AB plus वेक्टर DC दोनों के मैग्नीट्यूड सेपरेट ले सकते हैं ड्यू टू दिस कोलिनियर कंडीशन. mod वेक्टर AB plus mod वेक्टर DC. mod वेक्टर AB means AB, mod वेक्टर DC means DC. And therefore equation 1 था ये था equation 1. वेक्टर mn equal to half of वेक्टर AB plus वेक्टर DC. This is equation 1. इससे दोनों साइड का मैग्नीट्यूड दिया. मॉड वेक्टर mn equal to half of मॉड ऑफ वेक्टर AB plus वेक्टर DC और मॉड ऑफ वेक्टर AB plus वेक्टर DC means मॉड वेक्टर AB plus मॉड वेक्टर DC. That means AB plus DC. You get second part is proof. इसके बाद थर्ड एग्जांपल है. Using vector method, find the in center of triangle whose vertices are P 0 4 0, Q 0 0 3, R 0 4 3. in center निकालना है. ये ट्रायंगल है PQR. PQR vertices given है. In center is the position vector of a point of intersection of angle bisectors. That is what is in center. तो P के अपोजिट साइड है X, Q के अपोजिट साइड Y, R के अपोजिट साइड Z. प्रॉपर्टी है कि this point divides the side QR in the ratio Z is to Y. तो सबसे पहले देंगे पोजीशन वेक्टर Z3 वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर R with the position vectors of vertices P Q R respectively. वेक्टर P means 0 वेक्टर I plus 4 वेक्टर J plus 0 वेक्टर K and 4 वेक्टर J. वेक्टर Q कितना आएगा 0 वेक्टर I plus 0 वेक्टर J plus 3 वेक्टर K यानी 3 वेक्टर K. वेक्टर R 0 वेक्टर I plus 4 वेक्टर J plus 3 वेक्टर K. That means 4 वेक्टर J plus 3 वेक्टर K. बाद में निकालना है अपने को वेक्टर PQ. वेक्टर PQ इक्वल टू वेक्टर Q माइनस वेक्टर P. वेक्टर Q है 3 वेक्टर K माइनस 4 वेक्टर J. ये हो गया वेक्टर PQ माइनस 4 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K. देन फाइंड वेक्टर QR. वेक्टर QR means वेक्टर R माइनस वेक्टर Q. पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. वेक्टर R है 4 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K माइनस
3 वेक्टर के, वेक्टर क्यू 3 वेक्टर के, ये कैंसिल हो गए तो 4 वेक्टर जे। बाद में निकालना वेक्टर पी आर, वेक्टर पी आर मीन्स वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी, वेक्टर आर 4 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के माइनस 4 वेक्टर जे, 4 वेक्टर जे ट्रांसफॉर्म कैंसिल, ये कैंसिल किया तो बचा 3 वेक्टर के, ये हो गया वेक्टर पी आर। बाद में निकालना है वो साइड्स क्यू आर इक्वल टू एक्स, क्यू आर इक्वल टू वाई और पी क्यू इक्वल टू जेड। तो x इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर मीन्स मॉड वेक्टर क्यू आर, वेक्टर क्यू आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्यू आर था 4 वेक्टर j अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मीन्स रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4। बाद में निकालना है y, y मीन्स पी आर मीन्स वेक्टर पी आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज रूट 9 मीन्स 3। z मीन्स वेक्टर पी क्यू, मॉड वेक्टर पी क्यू का मॉड वेक्टर पी क्यू अंडर रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 25, 16 प्लस 9 रूट 25 मीन्स 5। द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर है h, इसका पोजीशन वेक्टर h, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला वेक्टर h इज इक्वल टू x वेक्टर p प्लस y वेक्टर q प्लस z वेक्टर r अपॉन x प्लस y प्लस z। ये ट्रायंगल द PQR, P के अपोजिट साइड x, ये y और z। फॉर्मूला कौन सा है? ये P का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर P, Q का पोजीशन वेक्टर Q, R का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। x इंटू वेक्टर P प्लस y इंटू वेक्टर Q प्लस z इंटू वेक्टर R अपॉन x प्लस y प्लस z, ये हो गया फॉर्मूला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R की वैल्यू सिंपलीफाई किए तो 16 वेक्टर j प्लस 9 वेक्टर के प्लस 20 वेक्टर j प्लस 15 वेक्टर के अपॉन x प्लस y प्लस z मीन्स 12। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो गया 36 वेक्टर j प्लस 24 वेक्टर के अपॉन 12, 12 से डिवाइड 36 अपॉन 12 यानी 3, 24 अपॉन 12 2, 3 वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर के, वेक्टर i का कोएफिशिएंट यानी x कोऑर्डिनेट, वेक्टर j का कोएफिशिएंट y कोऑर्डिनेट, वेक्टर k का कोएफिशिएंट z कोऑर्डिनेट, 3 वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर के यानी h के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 3 2। वेक्टर i की टर्म नहीं है यानी 0 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर k, 0 3 और 2 ये गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर h। फोर्थ एग्जांपल है ट्रायंगल एबीसी में डी पॉइंट बीसी को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में, ई डिवाइड सी ए इन द रेशियो 2:3, एडी और बी इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट पी, द पी पॉइंट एडी और बी को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो निकालना है और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी निकालना है। दो बातें, तो सबसे पहले यहाँ पे देंगे पोजीशन वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर d, वेक्टर e, these are position vectors of the points a, b, c, d, e respectively। बाद ये दिया हुआ है कि d divides bc in the ratio 2:3, e divides ca in the ratio 2:3, तो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है? वेक्टर d इक्वल टू 2 वेक्टर c प्लस 3 वेक्टर b अपॉन 2 प्लस 3, वेक्टर e इक्वल टू 3 वेक्टर c प्लस 2 वेक्टर a अपॉन 3 प्लस 2, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। वेक्टर d इक्वल टू 2 वेक्टर c, वेक्टर d इक्वल टू 2 वेक्टर c प्लस 3 वेक्टर b अपॉन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 आ गया। वेक्टर e इक्वल टू 3 वेक्टर c प्लस 2 वेक्टर a अपॉन 3 प्लस 2, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 वेक्टर e इक्वल टू 3 वेक्टर c प्लस 2 वेक्टर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अपने दोनों इक्वेशन से c एलिमिनेट करना है, c एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी यहाँ पे आता 6c, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो गया 6 वेक्टर c, देन सबट्रैक्शन। सो बाय एलिमिनेटिंग वेक्टर c फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन आ गया, दोनों सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट किए तो लोअर इक्वेशन के साइन चेंज, 15 वेक्टर d
minus 10 vector E equal to, they cancel, 10 vector B minus 4 vector A, minus 4 vector A transfer, minus 10 vector E transfer. So 15 vector D plus 4 vector A equal to 9 vector B plus 10 vector E. 5 plus 4 19, 10 plus 9 plus 10 19. So divide both sides by 19. 19 से डिवाइड करने के बाद में 15 वेक्टर D plus 4 वेक्टर A upon 19 equal to 9 वेक्टर B plus 10 वेक्टर E upon 19. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, 19 means 15 plus 4, यहाँ पे 19 means 10 plus 9, 10 वेक्टर E plus 9 वेक्टर B upon 10 plus 9, it is equal to वेक्टर P. यानी ये स्टेप होगा सेक्शन फॉर्मूला. वेक्टर P means position vector of point P. It divides segment AD internally plus and internally in the ratio of 15:4. P divides AD internally in the ratio of 15:4. P divides side a segment BE internally in the ratio of 10:9. ये ratio 10:9. And for वेक्टर P means position vector of point P हो गया और साथ में रेशियो भी आ गया. दोनों एग्जांपल्स करोगे. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P as well as the ratio in which P divides AD and BE.